Good afternoon, students. Today I'll ask some questions from you all, and those who know the answers drop their answers in the chat box, and to whom I'll address will unmute himself or herself and answer in the full sentences. So my first question is, name some human activities. कुछ human activities के बारे में बताइए. जैसे डेली लाइफ में आप क्या क्या करते हैं? एनीवन? Divyanshi, Abhishek, Abhilasha, anyone? Name some human activities. Yes, very good, Abhishek. So some human activities are walking, dancing, running, eating, etc. Next, name some market activities. Market activities are purchasing and selling of goods and services. Name the activities which are used for business purposes. Business purposes करने के लिए हम कौन सी activities करते हैं? Anyone? Okay, so students, today we will discuss about the topic commercial activities in detail. So here you can see a picture containing the topic commercial activities, and here it is a graph showing on your screen. You can take a screenshot of this and just read it afterwards. Very good. So students, now tell me, list some activities we do at night. What are the activities we as a students, we as a persons, we do at night? Anyone? You can drop your answers in the chat box also. Yes, Divyanshi? Very good. Having dinner and sleeping are the activities we do at night. Sleeping and dinner is when related to human life. It is called as जब स्लीपिंग, सोना और खाना हमारी ह्यूमन लाइफ से, हमारे डेली लाइफ से रिलेट कर रहा होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में? वेरी गुड अभिलाषा, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज. So in the same manner, when we perform some activities for the business purposes, business के main motive को लेके कि business के लिए हमें कुछ activities perform करनी है, तो उन activities को हम commercial activities बोलते हैं. तो अब हम आज in detail meaning of commercial activities जानेंगे, उसकी importance जानेंगे, factors जानेंगे and elements जानेंगे. So first of all, start with the what do you understand by the term commercial activity? So commercial activity is an activity intended for exchange in the market with the goal of earning an economic profit. Commercial activity आपकी एक वो activity होती है जिसमें हम market में exchange करते हैं एक main objective, एम और या गोल कह लीजिए उसको लेके, जो कि होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट. इकोनॉमिक प्रॉफिट मींस मनी रिलेटेड प्रॉफिट. The term commercial is also used to identify large institutional entities that are incompetent participants in a given market and have considerably scale. So इसमें क्या होता है, जो आपके लार्ज इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज होती हैं, ये मेजर रोल प्ले करती हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज को एज अ बिजनेस पर्पस में परफॉर्म करने के. The term commercial relates to commerce और जनरल बिजनेस एक्टिविटी. जैसे कि मैंने बताया कि वो सारी एक्टिविटीज जो आप एज अ ह्यूमन करते हैं तो उनको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं. उसी तरह वो सारी एक्टिविटीज जो आप बिजनेस पर्पस पे रिलेट करने के लिए करते हैं उनको हम बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं, और उन्हीं बिजनेस एक्टिविटीज को आप और करके कमर्शियल एक्टिविटीज भी कह सकते हैं. A commercial activity plays an active role in the future and forward markets, ranging from the initial production to the final skills. जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनका काम ये नहीं होता कि उन्होंने स्टार्टिंग में हमने सारी एक्टिविटीज कर दी उसके बाद हम बैठ गए.
जहां से काम शुरू हुआ है और जब तक काम शुरू हुआ है, जहां तक एंड पॉइंट उसका है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज अपना वर्क परफॉर्म करती रहेंगी। जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज उस कॉमर्शियल एक्टिविटीज को करने में इंडल्ज है, वो उसको पूरी तरीके से ही करके कंप्लीट करेंगे। A commercial may also refer to an advertisement broadcast over a media channel. एक कॉमर्शियल को अगर हम कहें तो एक एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हैं। वो उसके तहत कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर ये भी आपका एक पार्ट आता है जिसमें आप अपने बिजनेस को लेके उसको एडवर्टाइज करना और मीडिया चैनल्स पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दिलवाना। तो ये सब भी आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज के ही रिलेशन में आती हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अ कॉमर्शियल एंटिटी प्लेज एन एक्टिव रोल इन द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड market, and it is a term which is related to the commerce और general business activity। means ये एक टर्म है जो आपके कॉमर्स के टर्म से रिलेट करता है और ये बिजनेस एक्टिविटी में भी रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। अब आप किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स क्या विशेषता है। जैसे हम जब भी मान लीजिए मार्केट में कोई मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, घर पे गूगल पे जाके प्रॉपरली हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स हैं, वो उसके अंदर अभी नई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एड ऑन की है। फिर जाके हम डिसाइड करते कि हाँ हमें ये मोबाइल नहीं, हमें ये मोबाइल फोन ज्यादा लेना। चाहे हमें 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं उसकी हमें दिक्कत नहीं होती, बट हम चाहते हैं कि हमारा जितने से जितना ज्यादा अपडेटेड वर्जन का फोन ही हो, कि पता चले हम पहले पैसे भी लगा दें और वो चीज हमारे वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हमें ना मिले। तो किसी भी चीज को, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को देखने के लिए हम सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक बिजनेस की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस होता है उसकी जो मेजर एक्टिविटी होती है वो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कंटिन्यूअस मींस लगातार चलती रहती है। उसके साथ कभी ये नहीं होता कि नहीं आज हम काम कर रहे हैं और कल से हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में जिस चीज का प्रोडक्शन जब हो रहा होता है वो तब उसी फॉर्म में होता रहता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। आपको कभी नहीं पता होता है कि बिजनेस में आपको कब कहाँ पे कैसे लॉस आ जाएगा या आपको कौन सी अनसर्टेनिटीज को डील करना पड़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए क्या किसी ने सोचा था कि 2020 में कोविड आ जाएगा और ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि 3 मंथ्स का प्रॉपर लॉकडाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो जितने भी बिजनेसमैन है, आप सोचो वो 3 महीने में उन्होंने अपना कितना सारा सोच के पहले से फ्यूचर प्लानिंग करके रखी होगी कि इन अपकमिंग 3 मंथ्स में हम अपना इतना से ज्यादा इतना बिजनेस को एक्सप्लोर कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन जब प्रॉपर लॉकडाउन ही हो गया तो उनके पास कुछ ऐसी चीज बची ही नहीं, ऐसी फैसिलिटी अवेल हुई ही नहीं। तो इसलिए ये एक तरीके की आपके पास अनसर्टेनिटी ही तो आ गई, आपको नहीं पहले से पता था कि कुछ ऐसा भी होने को हो जाएगा। प्रॉफिट मोटिव। किसी भी बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो फिर चाहे कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल पर्पस के लिए हो, चाहे ऑफिशियल पर्पस के लिए हो। And the most important is customer satisfaction. According to the traditional concept, हम ये मान के चलते थे कि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें ये पता चला कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन बिजनेस का मेन मोटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं आज के टाइम में कि कंज्यूमर ही मार्केट का किंग है। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कंज्यूमर आपका फुल्ली सेटिस्फाइड है आपकी क्वालिटी से, आपके गुड्स की, आपकी क्वांटिटी से, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही परचेज करने आएगा और आपकी ही शॉप से ले जाएगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं है तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे?
एंड द लास्ट इज इट इज अ सोशल एक्टिविटी। आजकल जैसे आपने देखा, पहले लोग क्या करते थे, बोर्डिंग्स लगवाते थे, होर्डिंग्स लगवाते थे, पैम्पलेट्स बंटवा देते थे। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक अपना पेज बना लिया, उस पे 5-6 फोटोज डाल दी जिसपे लोगों ने कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिया और वहीं से परचेजिंग करनी शुरू कर दी। फेसबुक पे एक पेज बना दिया, वहां से लोगों को ऐड ऑन कर लिया और चीजें उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप कर दिया। तो जो सोशल एक्टिविटी होती है ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ और एक्सप्लोर करने में। ओके, सो उसी तरीके से जैसे किसी बिजनेस की कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और बिजनेस जो आपका कमर्शियल एक्टिविटीज है ये एक बिजनेस एक्टिविटी से ही रिलेट करता हुआ टर्म है, तो इसके भी अपनी कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। नाउ वी कम टू व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस के बारे में आप क्या जानते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म business? Okay, so I'll tell you. So business is an economic activity in which we produce and sell goods to one person, from one person to another person, with the medium of exchange money or with the objective of earning profit. What are the characteristics of business? एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? What are the major characteristics of business? अभी आपने नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा। So what are the characteristics of business? So in regular we can say कि it is an economic activity, it has profit motive and it is risk and uncertainties, it is a social activity, it is creative and dynamic in nature. So in the same manner as we have discussed the characteristics of business, in the same manner now we can understand the characteristics of commercial activities as you have seen in this photograph. Now, my learnings, economic या commercial activity. So what are the main characteristics of our commercial activities? First one is must have economic motive. Economic motive means हमेशा ये होता है कि आप मनी रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का या उससे रिलेटेड किसी भी टर्म का, तो उनका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि आप उनको इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट आता है मस्ट बी लीगल। हमेशा कोई भी चीज हो हम लोग क्यों कहते हैं उसको लीगल रखना चाहिए, क्योंकि इन केस फ्यूचर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट्स अरोज हो जाता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन अरोज हो जाती है जो कि आपके फेवर में नहीं उस टाइम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास खुद कुछ लीगली प्रूफ्स होंगे आपके पास कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई थी तो हमने इस पे ये डिसीजन लिया था। नेक्स्ट आता है मस्ट बी प्रोडक्टिव। कोई भी चीज है तो उसको प्रोडक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को लेके प्रोडक्टिव नहीं होंगे, प्रोडक्टिव नेचर के नहीं होंगे, तो वो चीज वहां पे फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। मान लीजिए बिजनेस ही है आपका किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, आपने एक बार बल्क क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बना के बंद कर दिया, तो क्या आप उस चीज का वेट करते हैं कि जब तक वो बल्क क्वांटिटी कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक हम नेक्स्ट बनाएंगे ही नहीं? अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर मान लीजिए आपकी मार्केट में आपके गुड्स की एकदम से ज्यादा डिमांड आ गई और आप नहीं उस टाइम आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाए या आप किसी वजह से गुड्स नहीं मार्केट तक पहुंचा पाए, तो क्या होगा, कोई भी कस्टमर आपके लिए वेट नहीं करेगा, वो तुरंत ही नेक्स्ट प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा। और मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से कहीं गुना बेहतर निकला तो नेक्स्ट टाइम वो घूम के कभी आपके प्रोडक्ट के पास आएगा भी नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को लॉस होगा और बिजनेस कंप्लीट हो जाए। Productivity. Productivity is commonly defined as a ratio between the output volume and the volume of input. Productivity को अगर हम define करें तो ये एक रेशियो है जो कि आउटपुट वॉल्यूम और इनपुट वॉल्यूम के अंडर आता है। In the words, it measures how efficiently production inputs such as labor and capital are being used in an economy.
Economic motive. An economic motive in human beings to calculate the cost and the returns involved in pursuing a certain desirable and to choose that line of action which will give one of the greatest returns in proportion to the expenditure of effort involved. तो इकोनॉमिक मोटिव मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका जो मेन टेंडेंसी होता है कि कितना टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करता है कि आपने जो भी लगाया, आपने जो भी प्रोडक्शन किया उसमें कितना खर्च आया और एंड रिटर्न आपको एक डिजायरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. Land, labor, capital and entrepreneurial ability which are used in the production of goods and services, they are economic resources because they are scarce, limited in supply and desire, जैसे कि and also called the factors of production. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, इसलिए हमको हमेशा अपने रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्शन में ऐसे यूज करना रहता है कि आगे चल के हमें अपने प्रोडक्शन के लिए कहीं पे भी रुकना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो एक लिमिटेड सप्लाई और एक लिमिटेड अमाउंट में ही होते हैं. अब जैसे कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी. ये आपके 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. ये बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं ये आपके नेक्स्ट जो समरी पार्ट होता है उसमें बेसिकली पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी. क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन करेंगे कहाँ, अगर आपके पास लेबर नहीं होंगे तो उस प्रोडक्शन के वर्क को कंप्लीट कौन करेगा, कैपिटल नहीं होगी तो आप लैंड कहाँ से लोगे और जो भी उस पे इन्वेस्टमेंट करना है वो सब कहाँ से करोगे, और एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी नहीं होगी तो हमेशा लोगों के, वर्कर्स के, एम्प्लॉयज के बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेके डिस्प्यूट्स अरोज होते ही रहेंगे और आप उन्हीं को सॉल्व करने में हमेशा रह जाएंगे और आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं दे पाएंगे. Commercial activities may be classified into two broad categories. अब commercial activities को two major categories में describe किया गया है. एक आपका आता है trade और दूसरा आपका आता है aids to trade. Trade का मतलब क्या होता है? Trade का मतलब होता है buying and selling of goods and services between two people with the medium of exchange of money within the geographical boundaries of a country or outside the geographical boundaries of a country. ट्रेड का मतलब होता है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं दो लोगों के बीच में और ये करते हैं कि आप उसको प्रॉपरली डील करते हैं विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. सो ये आपका ट्रेड कहलाता है. ट्रेड को हम फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में. एक आपका होता है होम ट्रेड और एक आपका होता है फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इंटरनली वो सारा ट्रेड जो हम विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री में रह के करते हैं उसे होम ट्रेड कहते हैं. और फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड होता है जो हम आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जाके करते हैं. जो भी ट्रेड या जो भी डीलिंग्स हम गुड्स एंड सर्विसेज के अपनी कंट्री से हट के किसी बाहर की कंट्री में करते हैं जाके, वो आपके फॉरेन ट्रेड कहलाता है. होम ट्रेड आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसे ट्रेड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एक कनेक्शन स्टेबल करता है, एक लिंक बनाता है. होलसेलर हमसे हम एक बल्क क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से और फिर उसे स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सोल आउट कर देता है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्राइस पे. रिटेलर क्या होता है? रिटेलर कंज्यूमर और होलसेलर के बीच में एक कनेक्शन स्टेबल करता है, एक लिंक स्टेबल करता है. ये होलसेलर से जो होता है वो एक स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है एक रीजनेबल प्राइसेस पे और कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है. जब कंज्यूमर को वो गुड्स अच्छे लगते हैं तब वो फिर से होलसेलर से ले लेता है, या अगर कंज्यूमर ने उसमें कोई उसको कमी बताई है तो वो भी वो चीज कन्वे कर देता है होलसेलर को.
तो ये मेजर चीजें हो गई कि होलसेल और रिटेल होता क्या है। नेक्स्ट आपका फॉरेन ट्रेड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी ट्रेड आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री के बाहर जाके करते हैं वो आपका फॉरेन ट्रेड आता। फॉरेन ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड ऑन्ट्रपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग किसी बाहर की कंट्री से करते हैं या बाहर वो सामान भेज रहे होते हैं, उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इम्पोर्ट ट्रेड जब हम किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में वो सामान ला रहे होते हैं। लाइक इट इज रिटन, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जब हम फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में कोई भी सामान अपने यूज के लिए ला रहे होते हैं तो उसे इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। एंड लास्ट आपका आता है एंट्रोपोर्ट ट्रेड। It means importing, buying goods from one country for the purpose of exporting them to another country. For example, India exports certain commodities from European countries and export them to Nepal and Bhutan. अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? अभी तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या हो रहा था कि सिर्फ आपकी दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन एंट्रोपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? आपकी थ्री मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया क्या करती है? कुछ कमोडिटीज में डील करती है और यूरोपियन कंट्रीज से वो सामान इंपोर्ट करा लेती है। फिर वो क्या करती है? एज अ मीडियोकर कंट्री वो उसको ट्रांसफर कर देती है नेपाल और भूटान को। तो यहाँ पे क्या हुआ? यूरोपियन कंट्री से सामान आया इंडिया में और इंडिया ने सामान को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? नेपाल और भूटान में। तो ये जो टाइप ऑफ ट्रेड है इसको हम एंट्रोपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन हमने किया था पहला तो ट्रेड था, दूसरा एड्स टू ट्रेड था। एड्स टू ट्रेड। नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू ऑल। दोज हु नो द आंसर्स drop their answers in the chat box, and those to whom I address will unmute themselves, himself or herself, and answer in full sentences. What are commercial activities? What are commercial activities? You can drop your answers in the chat box if there is any technical issue. Okay, very good, Divyanshi. So commercial activities are those activities which are done for the purpose of business. Next is, what are aids to trade? What are aids to trade? Yes, Abhilasha? Yes, Abhishek? Very good. So aids to trade is also known as auxiliary to trade. It includes to easy flow of goods and services from producers to consumer. It is of many types: insurance, transportation, warehousing, banking and finance, etc., advertising and publicity. Next is, what are the characteristics of commercial activities? एक commercial activities की क्या characteristics होती हैं? Okay, I'll tell you. So the characteristics of commercial activities are image building, getting resources, use of economic resources in a proper way. So here is the summary. Here is the summary. You can take a screenshot of this or you can note it down in your notebook as per your convenience. Or just took the screenshot and write it afterwards when the class has been ended. Everyone done? Okay, students. So homework. So there are two major homeworks which I have given to you related to the previous topic which we have studied today, that is commercial activities. So first is, define all the characteristics of commercial activities with a real life example. आपको commercial activities की जो three major characteristics थी उनको किसी real life example से co-relate करके बताना है। और कौन कौन सी आपकी three major characteristics थी? Productivity, economic motive and economic resources. These three are
द बेसिक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज। इन्हीं को आपको पहले आप बुकिश लैंग्वेज मत कॉपी करिएगा, बुकिश एग्जांपल्स मत कॉपी करिएगा, अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स खुद से देखिएगा और उनको लिख के लाइएगा। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, लिस्ट ऑल द कॉमर्शियल एक्टिविटीज यू सी इन योर डेली लाइफ। वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करिएगा। सबके घर में कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा होगा, किसी के चाचू कर रहे होंगे, किसी के ताऊ जी कर रहे होंगे, तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि कौन कौन सी ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं जो आप बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। उनसे पूछ के उनकी गाइडेंस में रह के एक लिस्ट तैयार करके लाइएगा। So thank you so much class. Here I am winding up with my class. Thank you students.